all committee members, zone conveners, project conveners, chapter chairpersons and their teams. मेरे आवाज आ रहा है क्या सबको? Yes, we can hear you. एक मिनट मेरे यहाँ कुछ तो ग्लिच दिखा रहा है, एक सेकंड. Anyways. नहीं, we can hear you properly. Go ahead. I appreciate the presence of entire JLW team and Apex dignitaries, Director in charge Sumanji Bachawat, JLW Chairperson Sunita Ji Bohra, Advocate Minal Ji Khona, Vice Chairperson Lalita Ji Golecha, Chief Secretary Sonai Ji Duggar, Secretary Sheetal Ji Duggar, and Treasurer Jayasri Ji Bhandari. And all the people who have joined us today, all members and non-members, welcome you once again. Now let's begin this event with Naukar Mahamantra. So please join your hands for Naukar Mahamantra. I am very happy to invite a person who is constantly guiding us, motivating us, much loved and much respected, National JLW Vice Chairperson, Minal Ji Khona, to please come ahead and share your words of wisdom. सादर जय जिनेंद्र टू वन एंड ऑल. आज आपका ये इंस्टा के ट्रेनिंग का 3rd डे है. तो 2 दिन के सेशन में तो इंदु जी ने काफी आपको अच्छे से समझाया है. आई थिंक सबके इंदु जी अकाउंट्स भी खुल गए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इंदु जी. सो ये इंस्टा के जैसा एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म हमारे लेडीज को समझाने के लिए तृप्ति जी, इंदु जी, ये टीम आई है. और इसका फायदा जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल है या जो भी छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचना है, उसके एग्जिबिट करने के लिए. एंड इसमें ना कोई खर्चा है, बस आपके हाथ में स्मार्टफोन है और आपके पास नेटवर्क है. इतनी 2 चीजों पे यू कैन प्रमोट योर बिजनेस. उसके सारे फीचर्स अच्छे से इंदु जी आपको समझा रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में. सो ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. I would definitely like to hear from you in 100 days what you have benefited from it. And Trupti ji, Indu ji, the Manzile team, आप ऐसे ही अच्छे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस एंड इवेंट्स हमारे लेडीज के लिए लाते रहिए. सो विमेन एम्पावरमेंट में हम आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Minal ji. With your guidance and support, definitely we'll try our best to get more and more such programs in future. Now, it's my privilege to invite our most dynamic National JLW Chief Secretary, Sonai Ji Duggar, to please come forward and guide us. Respected Minal ji, Jayashree ji, Trupti ji, Sheetal ji, Shilpi ji, all present here, all the Apex dignitaries. And thank you, Trupti ji, for the opportunity to share my thoughts with the audience. Influencers are dreamers, but are leaders with a vision. Engaged in building communities around topics, Insta is the most dynamic visual platform with reach and engagement. Simply said, they are brand ambassadors for one's business. The most significant presence is their coverage of food, fashion, education, etc., to name a relevant few, where the sublime talent of the content creators are visually depicted and the viewers are mesmerized. As Instagram has quickly become the to-go platform for the brand builders looking to connect with few audiences.
Influencers marketing on Instagram has become a top way to do it. When one works with the right influencer, it can be a huge boost to your brand. Never underestimate the influence one has over the others, which we shall soon realize with on hearing Induji. Thank you, Induji, Trupti and we are waiting to hear Induji. Thank you so very much, Sonali ji. Now I would like to invite a person who is handling a treasure of entire Jito JLW, a sweet person, National JLW Chairperson, Jayashree Bhandari. Jai Jinendra. Respected Meenal ji, Sonali ji, Sheetal, शिल्पी, तृप्ति, इंदु जी, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको भी मेरा जय जिनेंद्र। ये इंस्टा का प्रोग्राम जो इंदु जी और मीनल जी ने इंदु जी और तृप्ति ने क्यूरेट किया है, ये रियली बहुत बढ़िया है। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी जो हमारे एज ग्रुप की लेडीज हैं उनके लिए, जैसे बच्चों से सीखेंगे तो शायद वो कभी इरिटेट हो जाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से इसको सिखा रहे हो दैट इज द बेस्ट वे। और एक मेरा सजेशन है, आपने खुद को दिखाना सिखा दिया, खुद को प्रमोट करना सिखा दिया, तो मैं चाहूंगी तृप्ति जी और इंदु जी एज अ मंजिल कन्वीनर आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक्सेल और टैली का भी सिखा दे, जिससे लोग अपने हिसाब किताब को मेंटेन कैसे करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है बिजनेस को, वो भी सीख लें। सो ये मेरा सजेशन रहेगा। और रियली आई एम टेलिंग यू, लर्निंग इज नेवर वेस्टेड। सो जो भी प्रोग्राम हमारे आते हैं, आज जो जितने मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं, मैं कहना चाहूंगी कि आप प्लीज ये जितने भी हम जीतो लेडीज विंग के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, इनको सबको अटेंड करने की कोशिश कीजिए। रियली यू लर्न समथिंग एंड यू विल गेट समथिंग फ्रॉम इट। हम सारे कमिटी मेंबर्स और जीतो लेडीज विंग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारी लेडीज को हम किसी ना किसी तरह से आगे लाएं, उनका नॉलेज बढ़ाएं। सो आप सबका पार्टिसिपेशन, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज इसको अटेंड कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। मैं कहती हूँ अगर इस इंदु ने अगर हमको इसमें 100 सिखाया और हमने इसमें 5% भी सीख लिया, तो रियली इट विल बेनिफिट यू। आज नहीं तो कल आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। सो इसी भावना के साथ मैं बेस्ट लक कहते हुए तृप्ति जी और इंदु जी को कहूंगी कि ये आगे जो मैंने रिक्वेस्ट की उसको जरूर फॉलो करके ये 2 प्रोग्राम भी जरूर कराइएगा। थैंक यू। Sure, thank you so much जयश्री जी। Sure, we'll definitely try Excel and Tally। और जैसे जयश्री जी ने बहुत अच्छे से बोला कि इतना सब मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, तो we request everybody to attend the program। हम लोग आपको वीडियोस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव सेशन ना अटेंड करें। वो देने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि सेशन में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, आप उसका प्रैक्टिस करो, आपको मैक्सिमम उसका बेनिफिट हो। इसलिए हम वीडियो लिंक्स आपको रिकॉर्डिंग वापस भेज रहे हैं। बट हम सबका आपको अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लाइव सेशन एवरीडे अटेंड करो। Now I would like to take a moment to say thank you to each one of you who is sending us a feedback messages. It is really motivating us to do good, better and best. Thank you so very much. Now we will move ahead to our important session with Indu ji. She is our coach who is teaching us with complete her heart and soul, putting her heart and soul in it. So let us learn these new things from her. She is doing a fantastic job. We are very fortunate to have her to teach us this complicated topic in a very interesting way. Thank you so much, Indu. And now the session is all yours. Thank you so much, Tripti. Thank you so much, everyone out here. सबसे पहले मुझे कल काफी सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑन करके इंस्पायर किया। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के चेहरे देख के इतनी इंस्पायर्ड हो रही थी कि मैं सेशन खत्म करने के बाद भी अगले सेशन तक इंस्पायर्ड रहती हूँ। सो मुझे बहुत खुशी होगी मेरी इंस्पिरेशन देने वाले लोगों की लिस्ट थोड़ी सी। मेरी आवाज एक और हो जाएगी। मैंने जो बोला वो आ गई थी आवाज क्या? हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज अच्छे से। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ
मतलब अगर आप चाहते हो मुझे इंस्पायर करना तो प्लीज वीडियो ऑन करो, क्योंकि मैं चेंज कर करके आप सबको देख रही हूँ। इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है ये समझने में कि मैं ठीक पढ़ा भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो आपका फेस एक्सप्रेशन मेरे लिए फीडबैक के जैसे काम करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आप इसको एक एप्लीकेशन जैसा मत मानिए कि ये एक इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ये एक एप्लीकेशन सीख रहे हैं। हम ये एप्लीकेशन सीखने नहीं आए हैं, इट इज कम्युनिकेशन। जैसे कि पहले के जमाने में लोग ऑथर्स होते थे, लेखक होते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, मैगजीन्स में कुछ छापते थे। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक और मेथडोलॉजी है। अब ये ट्रेंड में है और हमें ट्रेंड के साथ अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी चाहिए कि हम हमेशा एंटी एजिंग पिल्स पर डिपेंडेंट ना रहे अपनी एजिंग को रोकने के लिए। तो हमारा माइंड हमारे को हेल्प करे इन सब चीजों के लिए। तो जब हम यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बिजनेस हो इसको करने के लिए, आपके पास कोई टैलेंट हो तो आपको करना है। आप सिर्फ फन भी कर सकते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। मैं आज आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के बेसिस पर बहुत ज्यादा वायरल है इंस्टाग्राम पे। इतने वायरल होते हैं कि उन लोगों को फिर बाद में मूवीज में भी ऑफर आने लगते हैं। आपको नहीं पता आपको इंस्टाग्राम में कौन कौन देख रहा है, यू डोंट नो। आपको सिर्फ स्किल सीखना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये इतना एक छोटी सी छोटी बात देखो, सपोज अगर आपने अपने आप को सिर्फ एक स्टोरी बनाने का भी एक्सपर्ट बना दिया, सिर्फ एक ये स्किल भी आपके पास आ गया, लोग इसके लिए भी आपको वॉच कर रहे हैं। आपके ऊपर है आप क्या प्रेजेंट करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, जस्ट बी क्रिएटिव। और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा फायदा होगा आपकी जो अंदर क्रिएटिविटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो खुश रहने की काबिलियत है, वो सारी एनहांस फॉर्म में रहेंगी। सो उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। बेशक से मैं कहूंगी कि लिमिटेड यूज करना है, हमें इसको अपने आप को खराब करने के इस्तेमाल नहीं करना है। और एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जीतो के लोग हैं, तो हम सब लोग किसी न किसी चैप्टर को बिलोंग करते हैं। तो मेरी एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग, हम जो पूरी जीतो कम्युनिटी है, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। और उसका ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि सबके पास अपना अपना चैप्टर का अकाउंट हो, हमारे सबके चैप्टर अकाउंट्स एक तरीके से डिजाइन हो, एंड मैं आपके चैप्टर के अकाउंट पे जाके आपके चैप्टर को जान पाऊँ। मुझे जरूरी नहीं है कि आपसे फोन करके बात करके ही पूछना है कि आपके चैप्टर में कोई फैशन डिजाइनर है क्या, या कोई क्या करता है। तो मुझे आपके मेंबर्स के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके हर इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट से मिले। और आपके मेंबर्स को मैं अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में आपके मेंबर्स को ऐसे भी हम प्रमोट करें, इंटर चैप्टर कनेक्ट करना शुरू करें उनको, सो दैट मेरे यहाँ पर अगर कोई बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर है, बहुत अच्छे कोई कोच है, तो आपको भी पता हो। तो क्यों ना हम इसका बेनिफिट करें। तो ये इंस्टाग्राम कोर्स को आप ऐसे यूटिलाइज करिए एंड लेट्स बिकम वन। अभी हम चैप्टर वाइज बनने में, मैं चाहती हूँ हम एक हो जाएं सारे के सारे, किसके थ्रू। सो चलो आज हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे रील्स बनाना। पर रील्स बनाने से पहले मैं आपको कोई छोटा सा फन एलिमेंट सिखाऊंगी, दैट इज फॉर फन, बट उसके पीछे भी बहुत क्रिएटिविटी है अगर आप देखोगे तो वो सीखते हैं। और रील्स इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रील्स ज्यादा बड़ा मार्केटिंग टूल क्यों है। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा फन एलिमेंट सीखते हैं। आप फोन उठा लीजिए, साथ साथ स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड अभी की अभी आप उसको पोस्ट भी करेंगे क्रिएट करके। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ओके, सो हम सब अपने अकाउंट पर आ गए। मैं अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करके बार बार आप लोगों के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही हूँ। जिनके भी वीडियो ऑन है मैं उनको देखूंगी, मैं नाम भी लूंगी। अभी मुझे भावना जी दिख रहे हैं, शशि जी दिख रहे हैं, वंदना जी दिख रहे हैं, मीनाक्षी जी। तो आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हो, थैंक यू उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टोरी में जाएंगे। स्टोरी में जाने के लिए हम ऊपर के प्लस साइन पर जाएंगे। इनकेस आपको याद नहीं है तो हमें प्लस साइन पर गए, इसको प्रेस किया, हमारे पास ऑप्शंस आ गई। स्टोरी 3rd नंबर पे है, उसको प्रेस करेंगे, हमारी गैलरी खुल जाएगी। आज हम फोटो नहीं चूज करेंगे, अपनी कोई भी फोटो चूज नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए ब्लैंक है, ब्लैक कलर का, उस पर लिखा हुआ कैमरा, इसको चूज करेंगे। हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है, अभी हमें हमारी लाइव फोटो इस वक्त जैसे भी हम दिख रहे हैं वो आएगी। अब आप मुझे देख पा रहे हो, मैं
सॉरी मैं इसको, हाँ ऐसे आएगा ये नॉर्मल, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी ये नॉर्मल आया। अब जैसे कल मैंने आपको स्टोरी के समय सिखाया था कि नीचे जो राउंड बटन्स बने हैं वो इफेक्ट्स के लिए हैं। तो अगर हम आप इफेक्ट चूज करना चाहते हैं, मैं एक इफेक्ट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ये मैंने कल रात को प्रैक्टिस किया था, ठीक है। ये लिया, इससे मेरी आई लैशेस बेटर हो गई हैं, ठीक है। ये वाला इफेक्ट ले लिया। अब हमें ये जो बटन है यहाँ पर, ये जो इन्फिनिटी के साइन जैसा है, जो ए के नीचे बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे, इसको बोलते हैं बूमरैंग। ये किस चीज का साइन है? बूमरैंग। ये बहुत पॉपुलर इंस्टाग्राम फीचर है। इसमें होता क्या है, जब हम इसके अंदर अपनी वीडियो को शूट करते हैं इस फीचर के साथ, तो जो भी हम कर रहे हैं वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो ये सबसे बड़ा सेंटर वाला बटन है, ये सपोज आप कर लो, आपका कैमरा ऑन है, ये कैमरा रिकॉर्डिंग का बटन है, इसको दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। जैसे आप दबाएंगे कुछ भी एक्शन करना अपने कैमरे के सामने और रिकॉर्डिंग बंद कर देना, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ, फिर आप उसको फॉलो करिएगा। तो मैंने किया, सपोज मैंने ऐसे किया, एक सेकेंड, हाँ अब मैं करती हूँ। तो ये मेरा रिकॉर्ड हो गया ऐसे, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप उसको जब सेंटर वाले बटन को दबाओगे तो दबा के रखना। मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर से। मैं, देखो नीचे देख रहे हो, ये चालू हो गया 1 मीटर ऐसे गोल गोल। जितना देर तक दबाओगे उतनी लंबी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये रिकॉर्ड हो गया था जो मैं बोल रही थी। तो ऐसे आपको बनाना है अपना ये। और उसके बाद कल जैसे मैंने स्टोरी में सिखाया था, कोई टेक्स्ट डालना है, कोई स्टिकर डालना है, वो सब तो एक्स्ट्रा है, वो आप कर सकते हो। तो लेट अस डू इट अगेन। सॉरी, तो ये रिकॉर्डिंग हो गई है, ये ऑन होती रहेगी, ये बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इसको अब आप पब्लिश कर सकते हो। इसको बोलते हैं बूमरैंग। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है कि मैं बूमरैंग कैसे बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि इसके लिए भी हमें टाइम क्या होता है, जब हम फ्रेशर होते हैं किसी चीज के लिए, हम दूसरों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब मैं आपको सर्च फीचर सिखा रही हूँ इंस्टाग्राम का। आपको कुछ भी इंस्टाग्राम में नहीं करना आता है, आप दूसरों का काम देखना चाहते हो, तो कैसे करोगे। नीचे, सबसे नीचे आप देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास का ऐसे बटन बना हुआ है, इसको सर्च का बटन बोलते हैं, इसको प्रेस कर दीजिए। अब टॉप पे चले जाइए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सर्च। जो भी ढूंढना चाहते हो यहाँ लिखेंगे। तो मैंने लिखा बूमरैंग, मैंने बूमरैंग लिखा। मैं बूमरैंग के फीचर्स देखना चाहती हूँ। तो नीचे बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। मैं इसके अंदर से कोई एक ऑप्शन ले लेती हूँ। मैंने बूमरैंग्स ऑफ इंस्टा, मैं एक अकाउंट आपको दिखाऊंगी। इस अकाउंट से आपको बहुत बूमरैंग्स के आइडियाज मिल जाएंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैंने सेव करके रखा था आप लोगों के लिए वो अकाउंट। ये रहा वो अकाउंट, बूमरैंग्स ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है। ये मैं आपको लिंक भेज दूंगी। इस अकाउंट में हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखो, ये ऐसे एक्शन रिपीट होता है, ये बूमरैंग है, किसी ने लिजर्ड का बनाया है, ये लोगों ने बनाए हैं और इसमें डले हुए हैं। तो ये हमारी क्रिएटिविटी है, हम बूमरैंग्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा बूमरैंग फीचर। अगर आप सबका हो जाए तो मुझे डन कर दीजिए, फिर हम रील्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम रील्स बनाएंगे। अच्छा, सब बूमरैंग बना के डाल दीजिए और टैग भी कर सकते हो फ्रेंड्स को, उनको भी दिखाई देगा, ठीक है। थम्स अप डाल दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ
हर्ष, मीनाक्षी जी, हेमंत जैन, सुरभि जैन, श्वेता, ध्यान, भावना जी, शशि जी, देन कीर्ति जी, अनुपमा जी, शीतल जी, नियति जी, सरिता जी। ओके, ठीक है, थम्स अप आने शुरू हो गए। सो बूमरैंग हो गया। आप इसके ऊपर जितना मर्जी एक्सपेरिमेंटेशन करिए, दूसरों के बूमरैंग देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट था। अब हम आते हैं रील्स के ऊपर। आप सबके फोन गैलरी में कुछ ना कुछ पिक्चर्स तो होंगी, हम उन्हीं को यूज करेंगे। आप ऊपर आइए, प्लस के साइन को प्रेस करिए, और अब आप देखोगे सेकंड नंबर पर रील लिखा हुआ है, रील, इसको प्रेस करना है हमें। अब मैं चाहती हूँ आप साथ साथ कर लीजिए, नहीं तो आप स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो बाद में कंफ्यूज हो सकते हो इसको, क्योंकि ये सबसे आपको डिफिकल्ट लग सकता है, जबकि ये थोड़ा सा सीखने वाला स्टेप है। ठीक है, यहाँ तक आगे सब लोग? ओके। अब आप नीचे देखेंगे, आपको गैलरी का बटन दिखाई दे रहा है सबसे बॉटम पे, ये रहा गैलरी का बटन, इसको प्रेस कर दीजिए। रील का मतलब होता है वीडियो, सबसे पहली बात। और लगभग इंस्टाग्राम की जितनी रील्स हैं, मोस्टली या तो वो एंटरटेनिंग है या वो हमें कोई ना कोई बात सिखा रही है, टिप्स देते हैं लोग। ठीक है, इस तरह की रील्स ज्यादा हैं। तो यूजुअली लोग अपनी एल्बम भी बनाते हैं रील्स के थ्रू, यानी कि पिक्चर्स को कलेक्ट किया और एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो आज मैंने अपने क्लास के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप और कुछ फोटोज रखी हैं सामने, इनको हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो जो जो फोटो आप अपनी रील में डालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये 6 के 6 डालना चाहती हूँ। अगर मैं ये वाली लेती हूँ, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है रील के लिए, ऐसी फोटोज मत लेना, क्योंकि इसमें टॉप ऊपर और नीचे ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैंक है। ऐसी फोटोज मत लेना, रील अच्छी नहीं लगेगी, लोग देखेंगे नहीं आपकी रील को। ऐसी वाली लेना जो फुल लेंथ है, वर्टिकल है। तो जब भी आप रील बनाने की इंटेंशन रखते हो, तो प्लानिंग से आप पिक्चर्स क्लिक करो कि मैं वर्टिकल फोटोज लूं। जैसे हम जीतो इवेंट में जाते हैं तो हम प्लान करते हैं कि हमें रील भी बनानी है, हमें पोस्ट भी बनानी है, तो हम बहुत केयरफुल होते हैं इस बात को लेके कि दोनों तरह की फोटोज क्लिक करें, वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, तो हमने ये वाली फोटो ले ली। अब इस फोटो को लेने के बाद, अभी मैंने एक ही फोटो ली है, ऊपर आप देखोगे ऐड का बटन है, इसको दबा दीजिए, ऐड। तो मेरी वीडियो के अंदर एक फोटो चली गई, ओनली 1 फोटो। अब मुझे और डालनी है, वापस से गैलरी में आइए, क्लिक करिए, अब एक और फोटो चूज कर लीजिए, ये कर ली, इसको भी ऐड कर दो। ऐसे ये स्टेप रिपीट करके आप 3, 5, 4, 5, 10 फोटो डाल लीजिए, 5, 6 डाल लीजिए, फिर मैं आपको आगे के स्टेप बताऊंगी। और अगर आपके पास कोई 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड की वीडियो है तो वो भी डाल सकते हो, मैं डाल रही हूँ वो भी दिखाने के लिए। ये 9 सेकंड्स का वीडियो है एक छोटा सा, मैं ये भी डाल रही हूँ। तो मैंने इसको चूज किया और ये आ गया ऐड। तो अब मैंने अपनी रील में 2 फोटो और एक वीडियो डाला है। अब मैं इसके आगे के स्टेप्स बताऊंगी, इतना करके थम्स अप कर दीजिएगा आप मुझे। ठीक है, भावना जी, शशि जी, वंदना जी, हो गया? सुरभि जी, नेहा जी, रसीला जी, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग द वीडियोस ऑन, थैंक यू। ठीक है, श्वेता जी हो गया, आगे बढ़े, थैंक यू। ओके, तो अब हमने यहाँ पे आ गए। अब हम ये श्योर नहीं है कि जो हमने डाला है दिखेगा कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद एडिट करेंगे। देखने के बाद हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, तो एडिट कैसे किया जाएगा। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रीव्यू का बटन है नीचे, आप देख लो, प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है हम यहाँ पर पब्लिश करने से पहले देख सकते हैं कि ये कैसे दिखाई दे रही है हमारी वीडियो। तो हमने इसको दबा दिया, तो ये चल पड़ी है। ठीक है, एक्चुअली ये मुझे पहले भी इशू आया था, जब मैं ये लाइव सेशन में देती हूँ तो ये मेरी वीडियो को चलाता नहीं है। तो आपकी चलेगी, मेरी नहीं चल रही, आप अपनी देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको एडिट करना सिखा दूंगी। आपकी चल रही है प्रीव्यू करने के बाद, ऐसे आ रही है वीडियो? मुझे कोई एक जना बता दीजिए कि आप वीडियो देख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, यस, तो ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हमें सपोज लगता है कि इसमें एक्चुअली रील की भी अपनी एक लेंथ होती है, रील को ऐसा नहीं है कि हम 20-25 मिनट का बना सकते हैं। आई थिंक 60 सेकेंड्स 1 मिनट का एक रील होता है ज्यादा से ज्यादा। और सपोज हमारी फोटोज बहुत ज्यादा हैं और वो 1 मिनट से ज्यादा हो रही हैं, आई नहीं रही इसमें फिट, हम चाहते हैं कि उनकी ड्यूरेशन कम कर दें, या हम चाहते हैं इसमें टेक्स्ट डाल दें,
या हम इसमें कोई म्यूजिक डाल दें, हम ये सब सीखेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन कम करना सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल जब वीडियो चल रही है, आपकी एक फोटो बड़े लंबे समय तक दिख रही है, लोग इतनी देर कोई नहीं देखता है किसी को, हम चाहते हैं फटाफट मूवमेंट हो फोटो की। तो हम कैसे करेंगे, नीचे आप देख रहे हो एडिट क्लिप्स लिखा हुआ है, एडिट क्लिप्स। एडिट का मतलब तो एडिट है, क्लिप्स का मतलब जो हमने फोटोज या वीडियोस वहां डाली है। तो मैं इसको प्रेस करूंगी, आप भी करिए। तो देखो आपको नीचे आपको पूरा दिखेगा आपने क्या क्या डाला था, देख पा रहे हो, 3 दिखा रहा है हमें ये ऑप्शंस, और आगे प्लस का साइन भी दिखा रहा है। तो हमारे पास और डालने की भी ऑप्शन है, और ये 3 भी हमें दिखाई दे रही है। अब फॉर एग्जाम्पल पहली फोटो जो है उस पर लिखा हुआ है 5 सेकेंड्स, मैं चाहती हूँ 5 सेकेंड्स ना रहे, ये बहुत लंबा है, सपोज ये 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद ये जो स्लाइडर बना है इसको हाथ से पकड़ के आप छोटा कर सकते हो। ऊपर टाइमर चल रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मैं छोटा कर रही हूँ 5 सेकेंड का 3.79, 3.22 ऐसे होता जा रहा है, ऐसे, ठीक है। ये आप कितना मर्जी छोटा कर सकते हो, फुल कर दिया तो 5, आधा कर दिया तो 2.5, कितना भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सजेस्ट करूंगी अभी आप फिलहाल प्रैक्टिस के लिए 3 सेकेंड्स पर कर दीजिए फोटो को, और बहुत एक्यूरेट नहीं भी आया ना तो चलेगा, मान लो ये 3 सेकेंड पे हो गया, ठीक है, ये कर दिया। अब वापस से नीचे ऑल क्लिप्स है, इस पे आ जाइए, ठीक है। अब देखो मैंने इस पे कर दिया, पहली फोटो 3 सेकेंड्स की है, दूसरी अभी भी 5 सेकेंड्स की है, इसको भी क्लिक कर लीजिए। अब इसको भी सेम, सॉरी, इसको भी सेम प्रोसीजर से 3 सेकेंड्स कर दीजिए, कर दिया। ऑल क्लिप्स पे आके अब थर्ड क्लिप को चुन लीजिए। थर्ड क्लिप मेरी वीडियो थी, और फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है मैं वीडियो तो पूरी रखना चाहती हूँ, तो मैं रख सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको छोटा भी कर सकती हूँ। ये देखो इस वीडियो में ये सब हो रहा है, तो हम इसको जितना मर्जी कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए इसको छोटा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमने वापस से यहाँ आ गए, ये हमने सीखा कि हमारी जो ड्यूरेशन है उसको कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये डालने के बाद लग रहा है ये नहीं, ये जो बीच वाली फोटो है इसको पहले आना चाहिए था, या आपको लग रहा है नहीं इसको मुझे लास्ट में डालना है, ऑर्डर चेंज करना है, तो नीचे आप देख रहे हो एक री ऑर्डर का बटन बना हुआ है, री ऑर्डर। री ऑर्डर मतलब हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको प्रेस कर दीजिए। अब क्या करोगे, आप अपनी उंगली से, अपनी फिंगर से फोटो को प्रेस करके उठाओगे, और जहां पे ले जाओगे वहां जाके फिंगर हटा देना, वो वहीं रह जाएगी। मैं करके दिखा देती हूँ, मैंने उठाया, यहाँ आ गई, या मैंने उठाया, इंदु वो लाने के लिए वापस एक बार दिखाना क्या किया आपने। हाँ मैंने जिस भी फोटो को उठाना था, फॉर एग्जाम्पल हाँ जिस भी फोटो को उठाना था इसको फिंगर से उठाया, फिंगर इस पे ले जाकर, मैं फिंगर यहाँ दिखा नहीं सकती हूँ स्क्रीन पे, आप मुझे देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे फिंगर दिखा रही हूँ। फिंगर फॉर एग्जाम्पल ये फोटो है, फिंगर पे रखा, फिंगर रखी, प्रेस किया, और फिंगर रखते रखते ही साथ में ड्रैगिंग बोलते हैं इसको, ड्रैग करना है इसको सिर्फ आपने, ठीक है। और आप इसको यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, ऐसे आप रीऑर्डर कर सकते हो, और आप डन कर दीजिए। डन हो गया, नीचे लिखा है ऐड क्लिप। अब यहाँ आने के बाद लगता है और डालनी है फोटो, तो ऐड क्लिप पे दबाएंगे, फिर से गैलरी में जाएंगे, एक फोटो और चूज करेंगे और ऐड कर देंगे। प्रीव्यू में जाके फिर से आप देख सकते हो कि भाई सब कुछ ओके है या नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें इसके साथ सजावट करनी है थोड़ी सी, फिनिशिंग, विल डू द फिनिशिंग नाउ। डन कर दिया। डन करने के बाद अब देखो ये बिल्कुल स्क्रीन वैसी आ गई है जैसे स्टोरी में होता है। स्टोरी में ऐसे ही थे ना, ऊपर हाई इफेक्ट का बटन, स्टिकर का बटन एंड ऑल दैट। तो हम यूजुअली स्टोरीज में देखो कुछ तो हमें ट्रेंड भी फॉलो करना चाहिए। स्टोरी का ट्रेंड होता है नॉट डोंट यूज स्टिकर्स। स्टोरी का यूजुअली ट्रेंड है जस्ट राइट सम टेक्स्ट, मोस्टली बाय यूजुअली तो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उसमें, एज इट इज डाल देते हैं। बट अगर क्योंकि फोटोज से बनी हुई है तो हम टेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट डालने से इट कनेक्ट्स टू पीपल कि आप उसमें कुछ लिख रहे हो। सपोज मैंने लिखा
मैंने लिख दिया सपोज विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। अब मुझे लग रहा है वाइट बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, चेंज करते हैं इसको, थोड़ा इंप्रेसिव बनाते हैं। तो हमने कल जो सीखा था वो सारा अप्लाई कर दिया और अब ये डाल दिया। अब सपोज मुझे लग रहा है कि ये लाइक नीचे आना चाहिए था, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऊपर की लाइन बहुत बड़ी है, नीचे की छोटी है, कटी हुई है, ऐसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो क्या करोगे आप, जहाँ पे एडिट करना है वहां पे दबाया, अपने कर्सर को हाथ से फिंगर से आप कर्सर को वहां ले जाइए जहां से आपने उस वर्ड को नीचे लाना है और एंटर का बटन दबा दीजिए, वो नीचे आ जाएगा। तो आप जैसे कंप्यूटर में टाइपिंग में एडिटिंग करते हो वो यहाँ पे भी सारी एप्लीकेबल है, ठीक है। और अभी भी आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है टेक्स्ट का, तो फॉन्ट बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉन्ट ले लिया ये, और हमने अब लग रहा है कलर बहुत डल है, हमने ये चेंज कर दिया, और हमें लग रहा है अभी ठीक है, मतलब अभी थोड़ा लाइट लग रहा है तो और चेंज कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है। हमने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक। अब हमने डाली तो 3 से 4 फोटो थी, क्या टेक्स्ट सबके ऊपर आएगा या किसी एक पे आएगा, या मुझे लग रहा है कि मैं सब पे अलग अलग टेक्स्ट डालूं, ऐसे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी हो सकता है आपने फोटोज को ज्वाइन किया और आपने एक स्टोरी बनाई, फर्स्ट फोटो में कुछ लिखा, सेकंड में कुछ लिखा, थर्ड में कुछ लिखा, सो दैट आपकी जो ऑडियंस है वो स्टोरी के चक्कर में सारी रील देखे, आपकी कंप्लीट रील, ठीक है। यू कैन बिल्ड अ स्टोरी ऑल्सो। तो आप अलग अलग क्लिप्स पे अलग अलग टेक्स्ट भी लिख सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, नीचे जो आप देख रहे हो एडिट क्लिप्स के ऊपर एक और ब्लैक बटन बना हुआ आया है, उस पर WH लिखा हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट का बटन है जो हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको दबा दो। तो इसने हमें दिखाया कि आपका जो टेक्स्ट है, अब आप देखोगे इस टेक्स्ट को, देखो ये, देखो एक इसमें ना 2 बटन होते हैं, देखो एक तो ये व्हाइट लाइन है जो हिल रही है, ये जो व्हाइट लाइन है ये तो मुझे स्टोरी के अंदर ट्रैवल करा रही है कि मेरा टेक्स्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो थ्रू आउट आ रहा है, ठीक है, हर स्लाइड पे है। बट अगर मैं बाहर वाला स्विच लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ, तो ये मेरी स्टोरी को छोटा कर देता है। इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, आपने सिर्फ अंदर वाली व्हाइट लाइन को देख के देखना है कि मेरा टेक्स्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही थी ये टेक्स्ट सिर्फ इस फोटो पे ही आए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इसको छुटकू कर दूंगी, ये यहाँ तक मैंने यहाँ छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ छोड़ूंगी तो इस स्लाइड पे भी आएगा, यहाँ छोड़ूंगी तो इधर भी आएगा, यहाँ छोड़ूंगी तो इधर भी आएगा, जितना सिलेक्ट करोगे उतने पोर्शन में टेक्स्ट आएगा सर। तो और थोड़ा आगे ले जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ आके, तो आपने बिल्कुल वहां आके छोड़ना है जहां तक आप चाहते हो टेक्स्ट आए, ठीक है। इतना करने के बाद आप कर दो ऊपर जाके डन, इतना कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ, एक और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं हम, एक टेक्स्ट और ऐड करके दिखाती हूँ। इतना करके मुझे आप थम्स अप करके बताइए प्लीज। बहुत लोगों के फोन पे एडिट क्लिप का ऑप्शन नहीं है, तो उनको वो भी बता दो। एंड्रॉइड फोन पे कैची का ऑप्शन आता है एडिट क्लिप। ओके, अच्छा एक्चुअली मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तृप्ति जी आप बता दीजिए प्लीज। ओके, जैसे इंदु अभी आईफोन यूज कर रही है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में एडिट क्लिप का ऑप्शन दिख रहा है, और जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं उनके ऊपर एक ट्रैश का बटन आता है, और बाद में कैची का, उसके बाद में कैची का बटन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सेम ये क्लिप को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप सबको समझ में आ रहा है जो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं? देखो मेरे फोन में एडिट क्लिप लिखा है, आपके फोन में कुछ और लिखा होगा या कुछ और डिजाइन होगा, आप उसको एक्सप्लोर कर लो। हाँ कुछ भी आप देखोगे होगा जरूर। फोन पे मैं दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे देख लो इसको। हाँ दिखा दो, दिख रहा है? मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूँ तृप्ति जी? नहीं नहीं, इट्स ओके, आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड, जस्ट कैची का बटन आ रहा है बस। लेट मी, हो गया सबका क्लियर, यहाँ तक आ गए सब, ठीक है। अब हम एक और टेक्स्ट डाल रहे हैं, सपोज हमें और टेक्स्ट चाहिए, हमने फिर से टेक्स्ट का बटन चूज किया, मैंने लिख दिया आई एम वेटिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे तो इस पिक्चर पे नहीं चाहिए ये टेक्स्ट, तो मैं नीचे आई एम वेटिंग वाले डायलॉग बॉक्स को क्लिक करूंगी और मैं इसको सेट करूंगी कि मुझे ये इस व्हाइट लाइन को आगे ले जाऊंगी कि मुझे तो इस वीडियो पे चाहिए था, ये इधर तक भी नहीं चाहिए, इससे पहले मैं इसको खत्म कर दूंगी, यहाँ तक चाहिए मुझे, यहाँ तक।
और उस वाली पिक्चर से हटा दूंगी, जहाँ यहाँ से, अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। नीचे जो फ्रेम है ना, जितना हिस्सा चुनोगे उतने हिस्से में टेक्स्ट आएगा। आप दोनों तरफ से चुनो, इधर से इधर कर दो, इधर से इधर खिसका दो, पोर्शंस खुद सिलेक्ट कर दो। करते समय स्क्रीन पे आपको दिखाता भी है साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा इधर ले जाती, सपोज मैं थोड़ा सा इधर ले जाती, ये देखो, तो मेरी इस फोटो पे भी आ गया टेक्स्ट। मुझे यहाँ से हटाना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, जहां मेरी वीडियो शुरू हुई यहाँ से डाल दिया, तो ये टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और मैंने इस फोटो से हटा दिया इस टेक्स्ट को, इससे भी हटा दिया, इससे भी हटा दिया। यहाँ तक कर दिया। अब मेरी इस क्लिप पे आके अब मैं डन का बटन दबा देती हूँ, तो मेरे पास 2 टेक्स्ट आ गए, 2 क्लिप्स पे 2 डिफरेंट टेक्स्ट। तीसरा चौथा आप डाल सकते हो। इतना कर लेते हैं। अब हम म्यूजिक डालेंगे। ठीक है, म्यूजिक के लिए ऊपर स्टिकर का बटन है, ये जो बना हुआ है जिसमें मेरा पॉइंटर है, इसको क्लिक कर दीजिए और इसमें म्यूजिक सर्च पे लिख दो म्यूजिक। सॉरी, म्यूजिक में यहीं पर ही बना होगा ना बटन, ये रहा ऊपर, इसमें यहीं पर ही बना होता है, ये रहा म्यूजिक का सिंबल। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये रहा म्यूजिक का सिंबल बना है, इसको प्रेस कर दीजिए, ऐसे आएगा यहाँ पर। ओके, आपने नीचे जो म्यूजिक लिखा है इसको चूज करना है। हम वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट नहीं कर रहे अभी इस क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि जितना मैं सिखा रही हूँ इंस्टाग्राम सिर्फ उतना नहीं है, ये फाउंडेशनल क्लास थी, इसका एडवांस लेवल भी है। ठीक है, तो हम म्यूजिक में जाएंगे। म्यूजिक में आए, जैसे कल हमने बात की थी बिल्कुल वैसी है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आप अपने सॉन्ग्स की लाइब्रेरी भी बना सकते हो, मैं वो भी सिखाऊंगी कैसे। ठीक है, सपोज ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इसमें चल नहीं रहा है, मैं डाल देती हूँ। मैंने डाल, लिरिक्स नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है सॉन्ग, ये डाल दिया और फिर कर दिया डन। इसमें भी आप कल के जैसे सॉन्ग का कौन सा पार्ट चाहिए स्लाइडर से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्लाइडर से सुन सुन के करना पड़ेगा, लिरिक्स नहीं है क्योंकि इसमें। ठीक है, और फिर आप कर दीजिए ऊपर डन। ये डल गया हमारा गाना। ठीक, और अगर आपके फॉर एग्जाम्पल ये इसमें मैंने एक वीडियो डाला था, उसका अपना भी साउंड था फॉर एग्जाम्पल, और मुझे वो नहीं चाहिए, तो ये कैमरा ऑडियो लिखा है, इसको आप कर देंगे 0 पे, वो वाली आवाज चली जाएगी, सिर्फ म्यूजिक आएगा। और दोनों रखोगे तो दोनों आवाजें आएंगी। तो आप सेट कर सकते हो कि किसको लाउड रखना है, किसको बैकग्राउंड में रखना है, या एक ही रखनी है, या दोनों रखनी है, बराबर रखनी है, या आपके ऊपर है। आप कॉम्बिनेशन खुद बनाओ कि मुझे ये हल्की हल्की तो चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या मुझे पूरी चाहिए, म्यूजिक पीछे से चाहिए हल्का हल्का। तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट्स करना अपनी रील्स के अंदर डाल डालकर। तो मैं तो इसको हटा देती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाते समय कभी इंटेंशन नहीं होती कि मेरी रील में ये वाली आवाज आए, तो हम उसको हटा देते हैं। तो रील बनाते हुए आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि लोग शोर कर रहे हैं, मेरी रील में आवाजें आ जाएंगी, हटा देंगे वहां जाके। सब बिंदास होकर रील बनाओ आप, उसका कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम कर देंगे डन। अब हमारी रील में वीडियो डल गया, फोटोज डल गई, टेक्स्ट डल गया, 2 क्लिप में अलग अलग टेक्स्ट डाला है, एंड हमने साउंड भी डाल दिया, आवाज भी डाल दी, ओरिजिनल ऑडियो हटा दिया, न्यू सॉन्ग ऐड कर दिया। अब अगर आप चाहो तो ये जो ऊपर 3 स्टार बने हैं इसको प्रेस करेंगे तो ये इफेक्ट्स हैं, आप ये भी ले सकते हो। ये ट्रेंडिंग है, रील्स के अंदर इफेक्ट्स डालना बहुत ट्रेंडिंग है, तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिया, इसमें कुछ ऐसे टेक्स्ट ऐसे भी हैं जो आपकी हमारे स्किन को एनहांस करते हैं, तो वो वाले फिल्टर्स लगाने चाहिए। तो आपको लगता होगा ना सोशल मीडिया पे सब लोग आपसे ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे ज्यादा सुंदर हो, बस आप फिल्टर लगा लेना, फिर उन्हें भी पता चलेगा। तो आप यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं अपने, तो एक्सपेरिमेंट्स करना आप, तो आपको पता चल जाएगा ये सारे फिल्टर्स हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो कूल, हम ये ले सकते हैं। चलो जी, इसको डन कर देते हैं। थोड़ा सा इसका जो फील है वो थोड़ा सा अलग है ओरिजिनल से। ठीक है, बस ऐसे आप ये सब करके, अगर आप सपोज यहाँ पे आ गए और आपको लगा एकदम से आवाज आई बच्चों की, मम्मी खाना दो, और आपने इतनी मेहनत की थी, आपको लग रहा है भी सारा गया बेकार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे
और बाद में आके शांति से खाना देने के बाद फिर बैठोगे, उसको कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? ये बटन है ऊपर डाउनलोडिंग का, एरो, डाउन एरो, ऐसे डाउनलोड, ठीक है, इसको दबाएंगे। इसने पूछा सेव विदाउट ऑडियो, ये जब भी सेव करेगा विदाउट ऑडियो ही सेव करेगा, ये रूल है इसका, ठीक है। तो ऑडियो तो आपको फिर दोबारा से करना ही पड़ेगा, बट इसकी एक कॉपी आपके इसमें सेव हो जाएगी फोन में। ये सेव हो गई, जितना आपने मेहनत किया था अब वो सारा सेव हो गया। आप दोबारा आना और रील अपलोड कर देना, ठीक है। चलो अब यहाँ तक आ गए। एक और फीचर दिखा देती हूँ, ये वाला, ये रील्स में मैंने नहीं दिखाया था, यहाँ दिखा देती हूँ फिर से। ये जो बना हुआ है ना ऐसे डूडल जैसा एक, इसको आप क्लिक करिए, इसको क्लिक करो। इसके अंदर सेकंड बटन जो है वो एरो का बटन है। सपोज ये ले लिया एरो, ठीक है, तो आपने एक लाइन बनाई तो अपना एरो बन जाएगा। सपोज मैं दिखाना चाहती हूँ कि रील देख रहे हो, बस मुझे ही देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ऑडियंस को बोल रही हूँ, रील में 2 लोग हैं, देखो मुझे इस तरफ, तो मैंने एरो बना दिया, तो ऑटोमेटिकली देखने वाले का दिमाग इधर ही ज्यादा जाएगा ना। तो आप एरोज भी क्रिएट कर सकते हो कैसे भी, और एरोज के कलर्स भी चेंज कर सकते हो। प्लीज ये सारे फीचर्स आप प्रैक्टिस जरूर करना ऐसे, ठीक है। आपको नहीं चाहिए एरो, अंडू कर दो, ऊपर जाके अंडू कर दिए, ठीक। अब इसमें एक ये वाला बटन है, ठीक है, जिसमें डॉट डॉट बने हैं। इसको आप देखो, इसमें ऐसे ग्लोइंग ये बनते हैं, और अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो ऐसे बड़ा सुंदर ये बनेगा। सपोज ये बन गया, ठीक है। अब ये जो पहला बटन है ना, ये है इरेजर। ये आपका पेंसिल बॉक्स है, इसमें इरेजर है, पेंसिल है, हाइलाइटर है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। पेन इरेजर उठाया और हमने क्या किया, इरेजर से जो बॉडी था उसके ऊपर से हटा दिया बस। ठीक है, ऐसे लग रहा है उसके पीछे से आ रही है लाइन। तो ऐसे आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। डिस्को लाइट क्रिएट कर दी हमने, ठीक है। ये सब फन एलिमेंट्स हैं, आप इसको वो भी कर सकते हो, यहाँ से थिकनेस भी बढ़ा सकते हो अपने पॉइंटर की, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, मैं अंडू कर रही हूँ। इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, और अब कर दो डन। डन करने के बाद अब सपोज करो हम ऐसी स्टेज पे आगे, हमने डिसाइड करा सब कुछ हो गया जी, अब और कुछ नहीं करना, पब्लिश करते हैं। तो नेक्स्ट का बटन दबा दो। अब सपोज करो यहाँ आ गए, अब यहाँ पे भी थोड़ा होमवर्क है, लेकिन फिर आवाज आ गई कि मुझे भी खाना दो, एक और बच्चे ने बुला लिया। अब क्या करेंगे, अभी भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे नीचे और बॉटम पे सेव एज ड्राफ्ट, यहाँ पे डाल दो। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने पूरे महीने का होमवर्क एक ही दिन कर लो। आपने सपोज प्लान किया स्ट्रैटेजिकली, मैं महीने में 4 रील डालूंगी, हफ्ते में 1, चारों रील एक दिन बनाई, ड्राफ्ट में डाल दी, बस जिस दिन डालनी है उस दिन पब्लिश कर दो। उस दिन कुछ काम नहीं करना, चलते फिरते सिर्फ बटन प्रेस करना है। तो हम ड्राफ्ट में डालेंगे और देखेंगे कहाँ गई, ठीक है। तो मैंने डाल दी सेव एज ड्राफ्ट में, चली गई। अब मेहनत वेस्ट नहीं हुई। अब ये कहाँ गई ये देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये जो ऊपर बटन बने हैं, हर बटन का एक मीनिंग होता है। पहला बटन ग्रिड का था, ये हमने सीखा। ओके, एक सेकेंड मैं, हाँ, सेकंड बटन जो है ये रील का है, ये वाला, ये रील्स है हमारी, ठीक है। तो अब देखो सारी रील्स पब्लिश्ड हैं, एक पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है सिर्फ, तो हमें यहाँ मिल गई। तो हम यहाँ जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने सिलेक्ट का बटन इसलिए दबाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रील्स भी हो सकती थी, तो पूछता कौन सी वाली पब्लिश करनी है, तो हमें सिलेक्ट के बटन से इसको चूज करना पड़ेगा। हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। एक मिनट, ये डिस्कार्ड क्यों दे रहा है, सॉरी, सिलेक्ट, हाँ, ये इसको मैंने प्रेस किया, इधर आ गए, वापस वहीं आ गए जहां से हमने छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैप्शन, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख के हैशटैग्स डाल के, हैशटैग का टॉपिक अभी रहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हैशटैग्स, पर अभी आप यहाँ पे हैशटैग जैसा भी कर रहे थे वैसे हैशटैग डालिए, ठीक है। इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे नीचे लिखा है ऑल्सो शेयर टू फीड, ये मैंने ऑन किया हुआ है।
मैं इसको ऑफ भी कर सकती हूँ और ऑन भी कर सकती हूँ। मैं आपको दोनों का मीनिंग बता दूंगी कि क्या होता है अभी इससे बाहर आने के बाद, ठीक है। इसके बाद आगे क्रॉप प्रोफाइल इमेज। सपोज यहाँ पर ये फोटो आई है, इसको नहीं यहाँ पे करते हैं। यहाँ लिखा है ना फोटो के ऊपर कवर लिखा है, कवर दिख रहा है आपको लिखा हुआ? हमारी रील के ऊपर एक वर्ड लिखा है कवर, इसको प्रेस कर दीजिए। कवर का मतलब है कि जब ये रील चल नहीं रही उस वक्त सबसे ऊपर क्या दिखाई दे। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, हर बुक का एक कवर होता है, बट कवर जो होता है इसका मतलब नहीं है बुक के अंदर भी वही दिखेगा। कवर तो कवर पे ही रहता है, अंदर कुछ और भी हो सकता है। कुछ लोग कवर पे भी वही डालते हैं जो बुक के अंदर होता है। तो आपके पास चॉइस है, आप इसका कवर क्या बनाना चाहते हो। तो आपको या तो नीचे देखो ऑप्शन दिखा रहा है ये सारे कि इनमें से कोई सीन है, आपकी रील का ही कोई सीन आप कवर बनाना चाहते हो, या आप नीचे एक प्लस का साइन है, कैमरा रोल में गए और आपने इसको कवर बना लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कवर हमारी चॉइस है, हमारी अपनी थिंकिंग है, हमारी पर्सनालिटी है, हम क्या रखना चाहते हैं, अंदर वाला या कुछ और। ठीक है। कई लोग यूट्यूब पे करते हैं ऐसा धोखा, बाहर लिख देते हैं ऐश्वर्या राय हुई बहुत बीमार और अंदर जाके देखते हैं कुछ और ही कहानी है। ठीक है। तो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। तो हमने ये कवर डाल दिया और हमने कर दिया डन। तो ये कवर डालने का फीचर था। और टैग करना है। टैग तब करना है, यूजुअली टैग करने का एक रीजन तो ये हो सकता है कि आप अपने ही फैमिली में, फ्रेंड्स में उनको दिखाना चाहते हो अपनी रील, तो आपने उनको टैग कर दिया, उनके पास नोटिफिकेशन चला गया। बट मेरा ये कहना है कि वो अगर आपके फैमिली है और फ्रेंड्स है उनके पास फिर भी जाएगी आपकी रील। टैग मत करो, नहीं तो वो तंग हो जाएंगे आपसे। ठीक है। टैग अभी कोर्स के लिए करना है, अभी ये नहीं कि आज कोई टैग ही नहीं करे, आज तो करो कोर्स तक, उसके बाद मत करना किसी को टैग, अननेसेसरी हमें बॉदर नहीं करना है। टैग तब करो जब आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लोकल फूड रेस्टोरेंट था, उन्होंने बोला कि मैडम आप हमारे बड़े रेगुलर कस्टमर हो और आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं आप हमारे लिए रील डालो और लोग हमारे यहाँ पे हमसे और खरीदें सामान आपकी रील देखने के बाद। तो उनको सबूत दिखाने के लिए कि मैंने रील डाली है और उनको कनेक्ट करने के लिए कि वो अपने अकाउंट पे भी इसको डाल पाए, मैं टैग करूंगी, तब मैं यहाँ पे टैगिंग कर सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लो मैंने वंदना जी को टैग कर दिया और उन्होंने मुझे ये काम दिया था ऐसा, तो ये टैगिंग होती है। ठीक है। अब मैं हटा रही हूँ पर आप डाल सकते हो। ठीक। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपने और आपकी फ्रेंड ने मिलकर एक रील बनाई है, उसी रील को वो भी डालना चाहती हो, उस रील को आप भी डालना चाहते हो, तो आप में से एक डालो और दूसरे के अकाउंट पे भी जाएगी। तो आप यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर्स भी कर सकते हो और उनको इनवाइट कर सकते हो। ठीक है। टैगिंग से भी कर सकते हो। मैं आपको एक कोलैबोरेशन वाला भी एग्जांपल दिखा दूंगी। फिर आते हैं लोकेशन, जैसे मैंने बताया था आप लोकेशन चूज करिए। ठीक है। फिर आता है रिकमेंड ऑन फेसबुक, क्या फेसबुक पे भी डालना चाहते हो, मैंने ऑन किया हुआ है, मेरी ऑटोमेटिकली रील्स वहां पे भी चली जाए, ये सब आप कर सकते हो। और हम इसको कर देंगे पब्लिश। तो आप लोग प्लीज अपनी रील पब्लिश कर दो, मैं नहीं कर रही हूँ पर मैं आपको कुछ ऑलरेडी पब्लिश्ड रील में 2-3 चीजें दिखा देती हूँ। ठीक है। और अपनी रील पब्लिश करने के बाद मुझे आप थम्स अप कर दीजिए सो दैट मैं आगे का पॉइंट बता दूँ आपको। इंदु जब तब तक जिनको कवर नहीं समझा है उनको एक बार वापस रिपीट कर दो। हाँ, कवर के लिए हमने रील पर आए। अच्छा मैं एक कवर का एग्जांपल दिखाती हूँ। कवर का एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने यूज किया एक जगह कवर का एग्जांपल अपनी ही रील में। जैसे ये वाली रील है मेरी, येलो येलो ड्रेस वाली, मैं इस रील को चलाती हूँ। अंदर तो ये थी, ड्रेस का भी नामो निशान नहीं था, मैंने कवर डाला था। ठीक है। तो अब मैंने कवर कैसे डाला वो स्टेप दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें गए, रील में गए, क्रॉप नहीं सॉरी, रील की जो ये फोटो दिखाई दे रही है इसी के ऊपर लिखा हुआ है कवर, इसको क्लिक कर दीजिए। नीचे सबसे नीचे आ जाइए, एड फ्रॉम कैमरा रोल ऐसा लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिए। आपकी गैलरी खुल जाएगी, जो फोटो कवर में डालनी है वो डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली डाल देती हूँ, मैंने डाल दी और मैंने कर दिया डन। तो मेरी रील का कवर ये बन गया। तो मैं चाहती हूँ आज आप एक रील अभी डालो, कवर दूसरा डालना कोई और डालो और थम्स अप कर दीजिए डालने के बाद।
मयूर सांघवी जी रील डालिए, मैं देख रही हूँ सबको, मुझे अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अर्चना जी, इंदु जी ये आप ड्राफ्ट को सेव करके एक बार प्ले करके दिखाइए कैसा दिखता है। ओके यहाँ से दिखाना है मुझे इस स्टेप से। कवर ऐड करके। हाँ कवर, देखिए यहाँ आए, रील को क्लिक करिए, रील वाले जहाँ पे आपको फोटो दिख रही है, रील दिखाई दे रही है, वहीं पर ही कवर लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसी को क्लिक करिए, ये खुल जाएगा। अब आप नीचे जाइए, नीचे आपको दो ऑप्शन देगा कि आपको अपनी ही रील का कोई सीन कवर बनाना है तो आप उसमें से चुन लीजिए, नीचे क्लिक करते जाइए जौन सा भी सीन चाहिए। उनमें से नहीं चाहिए, कुछ नया डालना है तो और नीचे जाइए, वहां पे प्लस का साइन है, ऐड फ्रॉम कैमरा रोल है, उसको क्लिक कर लीजिए और गैलरी में से जो फोटो चाहिए वो चुन लो और ऊपर जाके डन कर दो, डन कर दो। अभी वीडियो देखते हैं आपका कैसा बना है। शिल्पी शीतल जी बोलना चाह रहे हैं कि वो रील प्ले करके दिखाओ उनको, है ना शीतल? मेरी इसमें लाइव सेशन होने के कारण ये रील चल नहीं रही है इसके अंदर। ड्राफ्ट में जाके टेक्निकली कुछ सेव एज ड्राफ्ट करके पहले नहीं, मैं कोशिश कर लेती हूँ, मुझे नहीं लगता है चलेगी, लेट मी ट्राई, क्योंकि मैंने ये पहले भी ट्राई किया था लाइव करने से, वो चल नहीं रही थी। अभी चल नहीं रही ना मेरी, आपकी चलेगी। मैं ये बता सकती हूँ कैसे चलानी है। चलाने के लिए आप क्या करोगे, एडिट पे जाओगे, राइट साइड में एडिट लिखा है, इसको दबा दीजिए, यहाँ आके चलेगी वो, मेरी नहीं चलेगी। इंदु आप शेयर कर लो, वापस डिलीट कर देना उसको ताकि लोगों को दिख भी जाए कैसे दिखती है। अच्छा ओके ओके ओके, चला के दिखा। ओके मैं चला देती हूँ। मैंने डाल दिया, एक बार चला के देखते हैं क्या है उधर। ओके शीतल जी, एक बार शेयर करने के बाद दिख जाएगा। अभी हो रही है, पब्लिश हुई नहीं है, ये ब्लू लाइन आ रही है ना ऊपर, ये ब्लू लाइन का मतलब है अभी प्रोसेस में है। हाँ आ गई, ठीक है, अब चला के देखते हैं इसको, ये आ गई। इंदु उसको अनम्यूट कर दो रील को प्लीज। ओके अब मैं आपको यहाँ एक और फीचर दिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये देखो, जब ये मैंने इसको चलाया हुआ है, सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउडी, दिख रहा है आपको सबको क्लाउडी? क्लाउडी का मतलब है कि मैंने इस रील में ये वाला इफेक्ट डाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी रील देख के इंस्पायर हो रहे हो कि मुझे ये इफेक्ट डालना है, तो कौन सा डाला है ये कैसे पता चलेगा? तो लिखा होता है हर रील पे, आप उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आप कॉपी कैसे करेंगे, इस इफेक्ट पे जाओगे और यहाँ डालोगे यूज इफेक्ट, या फिर ऊपर लिखा हुआ है शेयर या सेव, इसमें से कुछ भी कर सकते हो। ये लिखा है ना सेव का बटन, इसको सेव कर लेना आप, आपके उसमें अकाउंट में, आपके उसमें लिस्ट में चला जाएगा। एक तो ये बात। दूसरा, नीचे गाने के वो आ रहे हैं 2 लफ्जों की, आप देख रहे हो नीचे लिरिक्स आ रहे हैं, उसके बगल में एक एरो बना हुआ है, सबको एरो दिखाई दे रहा है? सबको एरो दिखाई दे रहा है? मुझे आप बताओगे तो मेरे को समझ आएगा कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं। दिख रहा है? इस एरो का मतलब है ये वाला जो गाना हमने चुना है, जो ये म्यूजिक इसमें डाला है, ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग म्यूजिक इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज। आपकी रील की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो सकती है उससे, चांसेस आर मोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 1-2 रील्स और पहले मैं डिलीट कर दूं, इतनी देर में मेरे लोग देख लेंगे इतनी कि क्या डाल दिया इन्होंने आज। प्लीज 1 मिनट मेरे को ये डिलीट करना है।
डिलीट करना भी सिखा दो, तो साथ ही साथ सबको समझ अच्छा, आएगा। डिलीट करना भी सिखा देती हूँ। ये 3 डॉट्स बने हैं, एक सेकेंड, ये 3 डॉट्स बने हैं। अच्छा, पहले तो आप इस रील को शेयर भी कर सकते हो, ये ट्रायंगल बटन से आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सब फ्रेंड्स को भेज सकती हूँ कि ये रील देख लो। इस 3 डॉट्स से हम जाएंगे तो ये ऑप्शन आ गई, डिलीट का बटन सबसे ऊपर ही आता है, डिलीट। इसमें एक और बात है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड। ये मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको वो वाली बात बताऊंगी, म्यूजिक वाली। फिर से फॉर एग्जाम्पल मैं वापस आई और मैं अपने अकाउंट में आई, तो अब आप देखोगे कि मेरे ग्रिड में भी दिख रही है ये रील, देखो मेरे प्रोफाइल में भी दिखाई दे रही है पहले नंबर पे। तो ये हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमारी रील यहाँ दिखाई दे या ना दिखाई दे। मैंने पब्लिश करते समय वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी कि ग्रिड में आए। फॉर एग्जाम्पल वहां तो दिया परमिशन के ग्रिड में आए, यहाँ आने के बाद मन नहीं है कि ग्रिड में आए, तो आप रील को दबाओगे, इसको चलाना है, 3 डॉट पे जाना है और यहाँ बोल देना है रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड। अब ये रिमूव हो गई वहां से। अब देखते हैं जाके, इसे देखो वहां से चली गई, लेकिन ये है कहाँ पे है, रील वाले सेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको परमिशंस देते हैं कि उसको कहाँ कहाँ दिखाई देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये रील हमने आज ही डाली, जरूरी नहीं है कि हमारी प्रोफाइल सबको दिखाई दे, क्योंकि जिस वक्त ये दिख रही थी लोगों को, उस वक्त मेरी जो फ्रेंड थी वो ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी, वो फोन नहीं छूती है, तो मुझे पता है वो मिस कर देगी। तो मैंने क्या किया, इस रील पे गई, शेयर का बटन उठाया और मैंने लिखा ऐड रील टू योर स्टोरी। मैंने अपनी स्टोरी में डाल दी, स्टोरी सब लोग देख लेते हैं। ऐसे करके मैंने इसको अनाउंसमेंट में डाल दिया स्टोरी में। ठीक है, तब अपनी रील्स को जब भी कुछ भी डालते हो, ये तो मैं रिकमेंड करूंगी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे कुछ डालते हो स्टोरी में जरूर उसको ले जाओ। ठीक है, अब डिलीट करना है इसे, 3 डॉट पे फिर से आए, डिलीट का बटन किया और डिलीट द रील। ठीक, अभी मेरी ओरिजिनल रील है, इसको देखते हैं, एक सेकेंड। इसका म्यूजिक, इसके अंदर अब आप देखोगे नीचे जो म्यूजिक है उसके साथ एरो नहीं है, तो इसका मतलब ये म्यूजिक ट्रेंडिंग नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैंने डाला था उस वक्त भी ट्रेंडिंग नहीं था। तो ऐसा मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। कोई रील 2 महीने पहले डाली थी, उस वक्त वो म्यूजिक ट्रेंडिंग था, आज नहीं होगा। हमें तो आज का ट्रेंडिंग म्यूजिक चाहिए। तो क्या करेंगे, हम रील्स में जाए, नीचे सर्च में जाएंगे, रील्स के ऊपर भी अच्छी खासी R&D करी जा सकती है। नीचे सर्च में गए, यहाँ आ गए। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो आइकन दिख रहा है, ये 3rd वाले रील में देखिए जहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये जो बटन होता है ये रील का बटन होता है। हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या है। हमने देखा इसमें नीचे जो गाना है वहां पे एरो बटन बना हुआ है, इसका मतलब ये गाना ट्रेंडिंग है। आप सुन भी सकते हो। अपनी छोटी मैं बांध लूं दुनिया, दिल है महक जा। अब अगला देखते हैं, अब हम दूसरों की रील्स देख रहे हैं, इसमें भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है, इसको भी सुन के देखते हैं। ऐसे हम, ये भी ट्रेंडिंग है। अब जैसे ये वाला जो गाना है, ये जो इसमें टेक्स्ट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। कुछ ना, जैसे न्यू ईयर पे आया था म्यूजिक, वो बहुत ट्रेंडिंग था, सबने न्यू ईयर रीकैप बनाया था अपना, रीकैप 2021। तो आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये लेडीज के लिए बहुत आया हुआ है कि जो एक विमेन इमोशंस होते हैं उसके ऊपर भी कुछ ट्रेंडिंग रील डिजाइन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे कि इस वाले के ऊपर लोगों ने क्या क्या किया है। अब हम ये देखते हैं। ठीक है, मैं आपको रिसर्च करना सिखा रही हूँ। नीचे जो गाना था, क्योंकि मुझे पता चल गया ये ट्रेंडिंग है, मुझे लग रहा है मैं भी बनाऊंगी इस पे, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ आ गई। और सपोज मैंने यहाँ के डिसाइड किया कि ये गाना तो मुझे अपनी लाइब्रेरी में डाल देना है, मैं किसी दिन इसके ऊपर रील बनाऊंगी, तो मैं सेव ऑडियो पर क्लिक कर देती हूँ, ये मेरी लाइब्रेरी में चला गया। मैं आपको लाइब्रेरी में जाके भी दिखाऊंगी गाने कहाँ जाके सेव हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस गाने पे कितनी वैरायटी का काम किया लोगों ने। तो पहली रील देखते हैं।
a big goal for me. I want to stay happy. It's a big goal. I want to stay happy. सिर्फ इतनी सी बात है, आई वांट टू स्टे हैप्पी, इट्स अ बिग गोल फॉर मी। इसके ऊपर लेडीज ने बहुत रील्स बनाया है। I want to stay happy. It's a big goal for me. I want to stay happy. It's a big goal for me. I want to stay happy. It's a big goal for me. I want to stay happy. तो हमने ऑडियो सेव कर लिया, हमने आइडिया भी चुरा लिया। अब हम अपना ओरिजिनल आइडिया क्रिएट करेंगे। इंस्पिरेशन ले सकते हो आप सिर्फ दूसरे से, और रील बनाना आप सीख चुके हो तो आप इसी के ऊपर भी रील बना सकते हो। इस ऑडियो को सेव कर लो। आज सारे के सारे लोग अपने लिए प्रण ले लो कि आई एम गोना स्टे हैप्पी। ठीक है, तो ये गोल अगर हमारा 2022 का अचीव हो जाता है तो समझ लो कि सब कुछ हो गया। तो इसके ऊपर रील बनाने के लिए अब हम ऑडियो को कैसे अपनी लाइब्रेरी में देखेंगे, अब ये देखो। ठीक है, मैं वापस अपने अकाउंट में आ गई। मैंने यहाँ पर रील का बटन चूज किया, रील लिया। सपोज करो मैं गैलरी में आई, सपोज मैंने ये वीडियो बनाया, ऐड कर दिया। यहाँ तक तो सब सीख गए। अब म्यूजिक जब डालने लगे, ये ऑडियो का बटन है लेफ्ट में, ये ना प्लेसमेंट फोन टू फोन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, आप देख लेना। ऑडियो का बटन लिया, यहाँ ऊपर देख लो लिखा हुआ है सेव्ड। सेव्ड यहाँ पे आके सेव हो जाएगा आपका सारे म्यूजिक। अब आपको इतने सारे लिस्ट में ढूंढने की, टक्कर मारने की जरूरत नहीं, आप इधर आ जाओ। ये वो म्यूजिक है जो मैंने इंस्टाग्राम से सेव किए हुए हैं। देखो ये 2021 रिकैप भी सेव किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे ओरिजिनल सारे गाने सेव करके उसको यूज कर सकते हो। यहाँ से मिलेगा आपको वो गाना। ठीक है, वो ये वाला था ओरिजिनल ऑडियो, पहला वाला। अब देखो ये आ नहीं रहा, मैंने सेव भी किया पर मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा यूज करने की, बिकॉज मेरी वीडियो लंबी है और वो जो म्यूजिक था वो बहुत छोटा था। तो उनकी लेंथ भी मैच करना जरूरी होता है कई बार। तो आप समझ जाना कि मुझे छोटी रील चाहिए, इसके लिए छोटा क्लिप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, या तो हम अपनी रील बदल देंगे या हम अपनी क्लिप को छुटकू सा कर देंगे। सपोज मैंने क्लिप को ही छोटा कर दिया, एडिट, ये रहा, तो मैंने इसको छोटा कर दिया। मान लो मैंने इतना सा कर दिया। अभी जो साइन आया था ना, सेम वैसा एंड्रॉइड में आता है। वापस जाओ, वो दिखा दो लोगों को, एग्जैक्टली सेम एंड्रॉइड में आता है ये वाला। ये रहा। तो कैंची का मतलब ये ट्रिमिंग है ना, हम कैंची घर में भी तो कपड़ा काटते हैं फिर सीते हैं, वो कभी यहाँ कभी अगर यस वही दिखाना चाह रही हूँ तो एंड्रॉइड में ये वाला साइन आता है और एप्पल में एडिट क्लिप का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमने इसको वापस से छुटकू कर दिया, छोटा सा कर दिया, और ऊपर ट्रिम का बटन दबा दिया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये कर दिया। और अब कर दिया डन। वापस से ऑडियो में गए, सेव में गए, देखते हैं कि मैच बात बनी कि नहीं। देखो अब हमारा म्यूजिक हमें दे रहा है, तो इसने हमें दे दिया वो म्यूजिक। अब हम प्रीव्यू कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ वो म्यूजिक आ चुका है, चलेगी नहीं अब यहाँ पर आपके में हो जाएगी। तो मैंने आपको एक प्रोसीजर दिखाया है कैसे आप म्यूजिक, ट्रेंडिंग म्यूजिक ढूंढ सकते हो, सेव कर सकते हो और यूज कर सकते हो, और कैसे आइडिया क्रिएशन करनी है। क्योंकि हम न्यू हैं तो पहले हम कुछ समय दूसरों को ऑब्जर्व करके कॉपी आइडिया करें, धीरे धीरे ओरिजिनल आइडिया पे आ जाएंगे आप। एक बार करने लग गए तो आपकी ओरिजिनलिटी दूसरों से ज्यादा अच्छी निकलेगी। ठीक है, अच्छा और क्या था इसके अंदर, रील। अगर अब आपको रील का इंसाइट देखना है कि मेरी रील की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली रील जो है, ये रील ये जो एक आपको दिख रही है लाइट वाली, ये आई डोंट नो, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा मुझे, क्यों नहीं आ रहा है। एनीवेज इसमें म्यूजिक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नीचे 3 डॉट बने हुए हैं, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से देखेंगे, सॉरी, जब हमने डाला था ना व्यू इनसाइट्स, यहाँ से हमने देखा कि हमारी ये जो रील है इसमें ये इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर सिखा रही हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं, या आपको सिंगिंग का शौक है, एक्टिंग का शौक है,
कुछ भी फन करने का शौक है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका एक सैंपल दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया था। ये वाला, ये रेड फिट पिक्चर में जो फोटो है ना रील, ये वाला मैं चला रही हूँ, आप देखना। यहाँ पे मैंने रीमिक्स, इसको बोलते हैं रीमिक्स, यानी कि ये जो दर्शन, ये जो भी बॉलीवुड स्टार है दर्शन, इसका नाम लिखा हुआ है, ये जो भी है, इसका एक रील था, मैंने उसके साथ परफॉर्मेंस किया उसी के एक्शन को कॉपी करके। और मैंने इसमें कोई, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे को कोई डांस नहीं कर रही हूँ, कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बस मजे के लिए, दैट्स इट। ठीक है, इसको बोलते हैं रीमिक्स। तो कैसे करेंगे, और आज सब लोग रीमिक्स बनाना है। ठीक है, तो हम वापस से जाएंगे, सपोज सर्च में गए और हमने यहाँ पर, सपोज हमें म्यूजिक का रिमिक्स करना है, हमने लिखा बॉलीवुड सिंगर। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रिमिक्स बनाओगे तो वो भी आपको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनके पास आ जाएगा कि उनकी रील का रिमिक्स किया है किसी ने। इस तरह से आप दूसरों तक अपने आप को पहुंचाते हो। ठीक है, तो आपने, ये स्ट्रैटेजी होती है दूसरों तक जाने की, कि आपने कुछ उनके साथ कोलैबोरेशन में करा परफॉर्म। ठीक, तो अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमें कोई रिलीज मिलेंगी कि नहीं। और ये सब मैं आपको टैगिंग के समय सिखाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली रील है, ठीक है, आई डोंट नो आवाज क्यों चली गई इसकी। एनीवेज, इसमें ये जो शेयरिंग का बटन है इसी को प्रेस करिए, नहीं सॉरी, तीन डॉट्स को प्रेस करिए। इसमें लिखा हुआ रीमिक्स दिस रील। हर रील में रीमिक्स का ऑप्शन नहीं होता है, जो रील बना रहा है वो अपनी सेटिंग में परमिशन ग्रांट करता है तो होता है। ठीक है, तो आप जब रील्स बनाते हो तो इस बात का भी ध्यान रखना, जब पब्लिश करते हो वहां पे ऑप्शन होगा कि आप दूसरों को परमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। शुरू में दे देना अगर आपकी कोई रिमिक्स बना रहा है, तो बस कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। ठीक है, तो रिमिक्स करा तो यहाँ पर ये आ गया। अब अपने आप को इसमें एडजस्ट कर लो और इसके साथ परफॉर्मेंस करो रिकॉर्ड अपनी। नीचे कैमरे का बटन बना हुआ है। ठीक है, ओके, यस, ठीक है। मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे गाना वाना नहीं आता है। जो भी आप करना चाहो करना प्लीज आज। तो आपने ये करना है, ये इसको बोलते हैं रीमिक्स। आई थिंक टाइम हो गया, तृप्ति देखो एक बार। 4:11 हुए इंदु, हैशटैग हो जाएगा अपना। पोस्ट हैशटैग कर दूं? हाँ हाँ, हो जाएगा। ठीक है, हमने बाकी तो सीख लिया है, ट्रेंडिंग म्यूजिक, सेविंग लाइब्रेरी एंड ऑल दैट हो गया है। हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। हैशटैग होता क्या है, करते कैसे हैं तो सबको पता है, होता क्या है। अगर आपको होता है क्या समझ में आएगा तो जो आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। होता क्या है हैशटैग के अंदर, अगर हमने कुछ छापा इंस्टाग्राम पे और उसके साथ एक हैशटैग, सपोज कि शीतल जी ने अपनी फोटो डाली और हैशटैग फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला रेस 1 जो भी है, हाँ ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जहां पे जाके शीतल जी की वो पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। शीतल जी को भी नहीं पता होगा, उनको लग रहा है मैंने अपने अकाउंट पर डाली है, वो 10 जगह और जाके छप सकती है। तो हम एक बार देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मैं फिर से नीचे जाती हूँ सर्च के बटन में। आज हम कुछ हैशटैग्स देखेंगे। हम बड़े ऐसे लिख देते हैं, मैंने लोगों को देखा है, मान लो रोमांटिक सी पिक्चर डाली तो नीचे लिख दिया हैशटैग लव, हैशटैग पता नहीं क्या क्या। आप जाके तो देखो हैशटैग लव में आप जाके छप कहाँ रही है आपकी फोटो, वो देखना बड़ा जरूरी है। सपोज लव का ही देखते हैं हैशटैग, वहाँ क्या होता है। मैंने एक बार देखा एक ऐसा हैशटैग था जहाँ पे सिर्फ सारा एडल्ट कंटेंट था, और वहां जाके वो किसी की फोटो छप जाएगी तो आप सोचो कि वहां जो लोग आएंगे उनका इंटरेस्ट एडल्ट कंटेंट में है, और वहां पे हमारी फोटो दिखती है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है उसको समझना। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेंसिटिव हैशटैग भी होते हैं जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि लव में चांस है होने का ऐसा। ठीक है, तब जब मैंने जैसे ही लव लिखा तो आप ऊपर देख लो लिखा हुआ है टॉप अकाउंट ऑडियो टैग्स। मैं टैग्स में आ जाऊंगी।
अब लव के ऊपर इतने सारे हैशटैग्स हैं। पहली बात तो अगर मान लो आपका टॉपिक लव है, फॉर एग्जाम्पल आप रोमांटिक पोएट्री करते हो, ठीक है, आपका टॉपिक ये है रोमांटिक पोएट्री, आपको हैशटैग लव आपके लिए रेलेवेंट हैशटैग हो सकता है। तो आप और भी एक हैशटैग देखो, हैशटैग लव कोट्स, हैशटैग लव स्टेटस, लव स्टोरी, लवर, लव विंस, बहुत कुछ है। लव किस चीज का? नेल्स का, एक ने डाला लव नेल्स। तो हमें हैशटैग चुनने हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग कौन सा है। अब क्या होगा, हर हैशटैग के नीचे उसका एक साइज लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट वाले में लिखा है 2.1 बिलियन पोस्ट, यानी कि इस हैशटैग को यूज करके इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन से भी ज्यादा पोस्ट हैं। इसका ये मीनिंग हुआ। लव कोट्स में 47.7 मिलियन पोस्ट। तो ये साइज हो गया, यानी कि लव हैशटैग बहुत बड़ा हैशटैग है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लव कोट्स उससे थोड़ा छोटा है बट बहुत बड़ा है। अगर हम नीचे आते हैं, ये तो मिलियन मिलियन बिलियन मिलियन वाले हैं, तो हम नीचे आते हैं, 4 मिलियन आ गया, और नीचे आए और नीचे आए, मैं बहुत नीचे आ जाती हूँ, तो इतने ही आ रहे हैं। यानी कि लव वाले तो मिलियंस में ही हैं। कई बार क्या होता है 100 भी फिगर दिखेगा, 100 पोस्ट, छोटे छोटे हैशटैग। तो इसको आप ऐसे मानो कि इंस्टाग्राम में शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मॉल है, कोई छोटा मॉल है, जैसे हमारे शहर में होता है, ऐसे ये हैशटैग्स हैं। वहां पे उस मॉल में जब कोई जाएगा तो उसको उस मॉल से रिलेटेड सामान मिलेगा, और वो नाम से डिस्क्रिप्शन है, लव का है तो लव से रिलेटेड सामान ही मिलेगा वहां पे। तो अब देखते हैं, ये सबसे बड़ा टैग था, इसी को देखते हैं 2.1 बिलियन लोगों ने क्या डाला। चलो जी, यहाँ आ गए हम। ये एक जगह आ गई, ये इसको बोलेंगे इंस्टाग्राम हैशटैग अकाउंट। ये इंस्टाग्राम का हैशटैग अकाउंट है, ठीक है। जितने लोगों ने 2.1 बिलियन लोगों ने लव हैशटैग यूज किया, उनके सबकी पोस्ट यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। अब आप देखो, आप सिर्फ लोगों को फॉलो कर रहे थे अभी तक 3 दिन से, आप हैशटैग्स को भी फॉलो कर सकते हो, ऊपर फॉलो का बटन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका कोई, आप बहुत सीरियस हो किसी बात को लेके, तो उस हैशटैग को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं इस हैशटैग पे फिर से आऊंगी, जैसे कि मैंने जीतो लेडीज विंग का हैशटैग है, इसमें कितने पोस्ट हैं? 753 पोस्ट। और जीतो लेडीज विंग में कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैंने सोचा इसका मतलब इसमें मुझे सारे चैप्टर्स की पोस्ट दिखने के चांस हैं। तो मैं इधर आ गई, मैंने अपने जीतो गुरुग्राम वाले चैप्टर से इसको फॉलो किया हुआ है। तो बिना सारे चैप्टर्स को फॉलो करे जो इस हैशटैग को यूज कर रहे हैं, वो सारी पोस्ट मुझे रोज दिख जाती हैं। आपको पता भी नहीं होगा मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप ये हैशटैग यूज करोगे अपने जीतो गुरुग्राम के अकाउंट में या कहीं पे भी, वो यहाँ आ जाएगी और मैं इसको फॉलो करती हूँ, मुझे यहाँ से दिख जाएगी। तो एक तो हमें वैसे ही जीतो के कुछ हैशटैग्स ऐसे बनाने चाहिए जो हम सब यूज करते हैं और हम सब फॉलो भी करते हैं, तो हमारी बहुत सारा काम होएगा और हमारी नेटवर्किंग बहुत क्लोज हो जाएगी एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा, ठीक है। सपोज आप ही कुछ डाल रहे हो और आप चाहते हो जीतो लेडीज विंग में सबको दिखे, और जीतो लेडीज विंग में सारे लोग ये हैशटैग फॉलो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो आप भी अपने उस हैशटैग को डाल दो अपने अकाउंट में। एक तो ये बात होगी। अब हम आते हैं लव के ऊपर, इसमें आते हैं। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा हैशटैग था, जो चीज जितनी बड़ी होती है तो भीड़ भी ज्यादा होती है, जहां भीड़ ज्यादा होगी तो वहां गुम भी ज्यादा होते हैं लोग, यानी कि भीड़ में पहचान बनाना मुश्किल होता है। कम छोटा साइज होगा ग्रुप का तो आपकी पहचान जल्दी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंस्टाग्राम का, आपकी ग्रोथ इस पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। कितना भी फन कर लो, कितनी भी क्रिएटिविटी कर लो, इसका समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है टॉप, इसमें लिखा हुआ है रीसेंट, दोनों में फर्क है। टॉप का मतलब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रीसेंट का मतलब जो सबसे लेटेस्ट है, चाहे वो पॉपुलर हो या ना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है ऐसा पॉपुलर। पहले तो हम यहाँ पे ना स्क्रॉल करके बस देखते हैं यहाँ किस तरह की चीजें डाली गई हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तो नहीं है। अगर मैं लव हैशटैग करूँ तो मैं यहाँ दिखना चाहूंगी कि नहीं दिखना चाहूंगी, मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ गंदा नहीं लग रहा, ठीक है। चलो अब हम टॉप का देखते हैं। टॉप में ये एक रील डली हुई है, ठीक है, सेकंड देखा ये डला हुआ है। अब इसके अंदर देखो ये है टॉप, टॉप में यहाँ पे 1 आवर एगो लिखा है नीचे, आप देख रहे हो 1 आवर एगो, 1 घंटा पहले डली है ये,
1 घंटा पहले डली है, और ये वाली जो डली है ये 25 मिनट पहले डली है। अब अगर जब मैं रिसेंट में आती हूँ, रिसेंट मतलब जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट, और इसमें सबसे पहले खोलती हूँ, तो ये कब डली है? 10 सेकेंड्स एगो, यानी, और उससे अगली कब डली है? 11 सेकेंड एगो, उससे पहले 13 सेकेंड एगो। इसका मतलब यहाँ 1-1 सेकेंड के अंदर आप पीछे होते जा रहे हो। आप इमेजिन करो, आप यहाँ आते हो तो आप कोई नीचे तक थोड़ी ना जाने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा इतना हिलाओगे बस। तो यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं, यानी कि इन्होंने कुछ सेकंड में ही सारी फोटोज डाली। तो ये हैशटैग बहुत बड़ा है। तो जब हम बड़े हैशटैग यूज करते हैं और जब हमारा पोस्ट यहाँ पे आता है, तो हमारा नीचे खिसकने का चांस भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें बड़े हैशटैग यूज करने चाहिए, पर सारे बड़े हैशटैग नहीं यूज करने चाहिए, छोटे भी यूज करने चाहिए। क्योंकि छोटे में क्या होगा, आप ज्यादा देर वहां टिके रहोगे। जैसे कि हम जीतो वाले पे आते हैं, ये जीतो लेडीज गुरुग्राम का हैशटैग है। नहीं, गुरुग्राम का नहीं लेते, विंग का। ये लिया हमने। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिसेंट, अब ये देखो हमारी गुरुग्राम की पोस्ट यहाँ डली हुई है और टॉप पे दिख रही है। कब डाली थी देखें? 29 दिसंबर को। और वहां पे क्या था? 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, यहाँ महीने भर की डली हुई है, अभी तक टॉप पे है। तो छोटे हैशटैग का तो ये बेनिफिट होता है कि आप टॉप पे ज्यादा दिन रहोगे। ठीक है, तो हमें मिक्स हैशटैग्स यूज करने चाहिए अपने अकाउंट के अंदर। और हैशटैग का सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। लोग ऐसे भी सर्च करते हैं। मुझे अगर मान लो फोटोग्राफी पोजेस देखने हैं, फॉर एग्जांपल मैं फोटोज खींचना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ फोटोग्राफी पोजेस कैसे होते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? मैं किसी के अकाउंट थोड़ी ना ढूंढती फिरूंगी किसके फोटोज के पोजेस कैसे हैं, कौन अच्छे एक्सपर्ट है इसका, मुझे पता ही नहीं कौन है। तो मैं तो इसका हैशटैग का इस्तेमाल करूंगी। हैशटैग का इस्तेमाल किया, टैग्स में आए और फोटोग्राफी पोजेस का हैशटैग चुन लिया। यहाँ से हमने देखा कि इसका अच्छा है। सपोज आपको ये बहुत अच्छा लगा तो आप इसके अकाउंट में जाओगे, इसके अकाउंट में चले गए, अब इसके अकाउंट को और स्टडी करो। ऐसे करके आप लोगों को ढूंढते हो। दिस इज हाउ यू सर्च पीपल ऑन इंस्टाग्राम। एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ। मंडाला डिजाइन देखने हैं। सपोज आप मंडाला ड्राइंग करते हो और आपको आइडिया ही नहीं आ रहा मैं नया डिजाइन क्या बनाऊं। चलो जी, मंडाला ड्राइंग में जाते हैं। 1 मिलियन लोगों ने मंडाला ड्राइंग डाली है, यहाँ ढूंढो बैठ के डिजाइन। सपोज आपको लगा कि ये बड़ा अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये बहुत अच्छा है, ये क्या कर रही है, आपको इसका और काम देखना है, तो आप कहाँ जाओगे? आप ये ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है मंडाला सॉल्यूशन। ये 2 लोग, एक तो इसमें ना 2 सर्कल बने हैं, यानी कि 2 लोगों की पार्टनरशिप है इसमें, 2 लोगों ने पार्टनरशिप करी हुई है इसमें। इसको क्लिक कर लो, इसके अकाउंट में आ गए, इसका काम एनालाइज करो। ऐसे करके आप 10 लोगों के अकाउंट में जाओ, जिसका काम अच्छा लगता है उसको फॉलो करने लग जाओ। ऐसे आपके काम को देख के लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसे पहुंचते हैं फॉलोवर आपके पास। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी। 422 इंदु एक क्विक क्वेश्चन लेते हैं 2-3 जो लोगों ने पूछा है। किसी ने पूछा है कि जो कोलैबोरेशन है, इनवाइट में हम कोलैबोरेशन करते हैं, वो एक बार एक्सप्लेन करिए। ये ना एक्चुअली नेक्स्ट लेवल के कोर्स में है। मैं बस एक सैंपल दिखा देती हूँ। ये वाला, ये एक रील है मेरी 4th नंबर की, मैं चला रही हूँ। इसके अंदर नीचे देख रहे हो बानी द स्टार एंड इंदु जैन लिखा हुआ है। तो ये जो लड़की है बानी द स्टार, इसका ये बानी है, इसने ये रील अपने अकाउंट में डाला था और मेरे साथ कोलैबोरेट करा, तो ये मेरे इसमें भी आ गई। ये है बानी। शी इज बानी। ठीक है, तो लेकिन इसको कैसे करना है, क्यों करना है, ऑल दैट, तो फिर ये एक अलग से टॉपिक है पूरा। ओके, व्यू इनसाइट्स आई थिंक वो कल भी सिखाया था, बट एक बार दिखा दो व्यू इनसाइट्स कैसे देखने हैं। हाँ, रील के अंदर क्या होता है, जब आप रील फाइल ग्रिड में डाल देते हो ना, परमिशन देते हो, तो यहाँ पे व्यू इनसाइट की ऑप्शन होती है, तब देख सकते हो। एक और बात है, रील कभी भी बूस्ट पोस्ट नहीं हो सकती, रील्स में वो ऑप्शन ही नहीं है।
बट मैंने आपको बोला था रील इज वेरी बिग टूल फॉर मार्केटिंग। क्यों बोला था? इसका रीजन ये है कि अब आप मेरी रील्स में जाओगे, कोई रील 15,000 लोगों तक गई, कोई 2,000 लोगों तक गई। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी मम्मी का अकाउंट है, ठीक है। मेरी मम्मी रोज थोड़ी कुछ जो भी करती हैं डाल देती हैं। अब इनकी रील्स देखो आप, इनकी कल की रील 3,000 लोगों पे चली गई, एक दिन उनकी रील 7,000 लोगों पे चली गई। वो चाह के भी 7,000 लाइक्स नहीं कलेक्ट कर सकती थी ऐसे तो डायरेक्ट, पर रील्स से बहुत जल्दी मिलते हैं आपको लोग आपको नोटिस करते हैं। इफ दे लाइक यू दे कैन फॉलो यू, दे कैन कॉन्टैक्ट यू। आपके हाथ में सिर्फ उन तक पहुंचना है और अपना अच्छा काम करना है, बस। कुछ लोगों को लग रहा है कि जब हम सॉन्ग्स ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स दिख रहे हैं, हिंदी नहीं है, तो एक बार एक्सप्लेन ओके। करके हिंदी भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, मैं एक रील का ऑप्शन ले लेती हूँ, ऐड किया, म्यूजिक में गए, यहाँ पर क्योंकि यूजुअली इंग्लिश गाने यहाँ पहले दिख जाते हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप यहाँ डाल दो हिंदी सॉन्ग्स ऊपर सर्च में, ये सारे हिंदी सॉन्ग्स आ गए, ठीक है। और वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगी रात को बैठ के 2-4 रील देख के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स एरो से पहचान के उनको सेव करके अपनी लाइब्रेरी बना लो, बेस्ट होता है। आप अगर प्लानिंग करोगे तो आपको रोज काम भी नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटा बैठे, पूरे महीने के सॉन्ग 8-10 इकट्ठे कर लिए, और एक दिन बैठे 4-5 रील बनाई, ड्राफ्ट में डाल दी, और फिर जब जब अपनी प्लानिंग की है अकॉर्डिंग टू योर कैलेंडर पोस्ट करते चले गए, दैट्स इट। एक क्वेश्चन है किसी का, जो ड्राफ्ट में हम रील सेव करते हैं क्या वो सबको दिखेगी या सिर्फ हमें दिखेगी? सिर्फ आपको और किसी को नहीं। इनका कहना है कि टैग ऑप्शन के साथ जो इनवाइट कोलैबोरेशन था वो उनको चाहिए वापस। जब आपने टैग सिखाया था पहले, उसके साथ एक राइट में इनवाइट कोलैबोरेशन था, तो बेसिकली यू कैन इनवाइट योर कोलैबोरेट विद योर फ्रेंड्स, राइट? Basically, collaboration is always between two companies or maybe two ideas. कंपनी के फॉर्म में आइडिया होना जरूरी नहीं है। जैसे बानी एंड मी, बानी इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, एंड आई एम एन ऑथर, तो हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ। वी वांटेड टू शोकेस कि मैं आई एम एन ऑथर फॉर चिल्ड्रन बुक पब्लिशर, आई एम ए चिल्ड्रन बुक पब्लिशर। मैं बच्चों की दुनिया में रहती हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ, तो आई वांटेड टू शोकेस दिस, तो वी कोलैबोरेटेड, शी अग्रीड टू परफॉर्म विद मी, ऐसे। तो इसके पीछे एक रीजन था। ये जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, दिस इज माई पर्सनैलिटी एंड आई एम शोइंग मिक्स ऑफ माई पर्सनैलिटी कि हाउ वेल आई कनेक्ट विद चिल्ड्रन बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर चिल्ड्रन एंड हाउ आई एम एज अ पर्सन, सो दैट जो मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, आई हैव अ पेरेंट कम्युनिटी जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे से पेरेंटिंग टिप्स लेते हैं, तो दे शुड लाइक मी एज अ पर्सन ऑल्सो। मैं उनसे मिल तो नहीं सकती ना, कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो दे नो मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। सो दैट इज हाउ आपको भी अपनी पर्सनालिटी लोगों तक पहुंचानी है, सो दैट दे नो यू एज अ पर्सन। अदरवाइज तो सोशल मीडिया पे आपको कोई कैसे जानेगा। सो दे सी माई फन साइड ऑल्सो, दे सी माई सीरियस साइड ऑल्सो, दे सी माई सिली साइड ऑल्सो, दे सी माई मेच्योर साइड ऑल्सो, लाइकवाइज ऐसे। All right. I think we are done with all the questions here. अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें लिखिए, इंदु जी आपको 100% उसका आंसर दे देगी। थैंक यू सो वेरी मच इंदु, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल। रील का थोड़ा टॉपिक टफ है लोगों के लिए, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको जम जाएगा 100%। सो आई नाउ रिक्वेस्ट आवर JLW Secretary Sheetal ji to come and propose a vote of thanks. Sheetal ji Dugar. जय जिनेंद्र एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबने ये सेशन अटेंड किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे डायरेक्टर इंचार्ज सुमन जी बछावत को, नेशनल चेयरपर्सन सुनीता जी बोहरा को, वाइस चेयरपर्सन एडवोकेट मीनल जी खोना एवं ललिता जी गुलेचा जी को, चीफ सेक्रेटरी सोनाली जी दुग्गड़ को, ट्रेजरर जयश्री जी को, सेक्रेटरी शिल्पी जी को, कन्वेनर तृप्ति जी को, ऑपरेटिंग कंप्यूटर गुरुग्राम वाइस चेयरपर्सन अंजलि जी जैन एंड सेक्रेटरी वंदना जी जैन को, एंड आवर बिलव्ड स्पीकर इंदु जी जैन को। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत जो आप यहाँ पधारे और ये सेशन का
लाभ लिए। ऑब्वियस, हाँ, हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। थैंक यू एवरीवन, आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आगे भी आप अपना सेशन अटेंड करिए। धन्यवाद। नाउ वी शुड रेज आवरसेल्फ फॉर नेशनल एंथम। थैंक यू सो मच शीतल जी। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Thank you so much, everyone. Thank you, Aditi, for technical support here. Thanks a lot. Anjali ji, Vandani ji, and everybody who has joined us today. See you all tomorrow, 3 p.m. sharp.